netting twice in Portugal's 5-0 win over Uzbekistan. Mumbai is waking up to a challenging monsoon morning, viewers, with heavy rainfall lashing the city since last night. Severe waterlogging, fallen trees and disruptions to local train services have hit several areas, testing the city's infrastructure. Authorities have issued warnings for moderate to heavy rain with thunder and lightning as the city grapples with its annual monsoon woes. Let's take a look at some visuals coming in from Mumbai. Let's get that up on the screen, viewers, and there you go. Starting with Malabar Hills. Rain continues to lash parts of Mumbai with visuals from Malabar Hills showing heavy downpour this morning. The Brihanmumbai Municipal Corporation has forecast generally cloudy skies with moderate to heavy rain, along with the possibility of lightning and thunder across the city and suburbs. Residents are advised to stay cautious and avoid waterlogged areas. Severe waterlogging has been reported in parts of Mumbai due to continuous heavy rainfall overnight. Now, visuals from King's Circle show streets submerged, as you can see in the video there, viewers, disrupting normal life. Commuters are facing hardships as the city deals with its first major monsoon spell of the season. Motorists are urged to drive slowly and avoid low-lying areas. Let me now show you visuals from Dadar. Now, in Dadar, heavy rainfall has led to trees being uprooted, damaging a car in the process. An orange warning has been issued by BMC for moderate to intense spells of rain in Mumbai, Thane, Raigad, Palghar and Sindhudurg districts. Authorities are monitoring the situation as rain continues to batter the city. Let's talk about the local train services now. Local train services on Mumbai's Harbour Line have been disrupted due to waterlogging on the tracks following heavy rain. This is causing significant inconvenience to daily commuters. Railway authorities are working to restore normal services at the earliest. Passengers are requested to check updates before planning their journeys. I have my colleague Shahid Ansari joining me from Mumbai. Shahid, जो मौसम का स्वभाव है वो तो मौसम को तो सुहाना कर ही देता है जो बारिश होती है, पर जो इनकन्वीनियंस मुंबई वासियों को अभी फेस करनी पड़ी है बारिश की वजह से, उसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार मानसून 13 दिन जो है लेट आया है और इस बीच 13 दिनों में जो गर्मी और धूप और इस तेज़ गर्मी का लोग सामना कर रहे थे उससे राहत ज़रूर मिली है, लेकिन 13 दिन बाद होने वाली इस बारिश ने बीएमसी और प्रशासन की जो है पूरी पोल खोल दी है। मुंबई और मुंबई से सटे दूसरे इलाके, मुंबई, नालासोपारा, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, ये सारे इलाके जो भी हैं या तटवर्ती क्षेत्र जितने भी हैं, इन सभी इलाकों में बड़ी तेज़ बारिश हुई है और कई इलाकों में जल जमा हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह समुद्र में तकरीबन 7:30 बजे के आसपास 3.5 फीट से ऊंची लहरें उठी हैं। वहीं दूसरी बार इन लहरों को उठने को लेकर मौसम विभाग ने इस बात की घोषणा की है कि शाम 8 बजे के आसपास भी समुद्र में 4 फीट से ऊंची लहरें उठ सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस समय समुद्र में जाने से गुरेज करें, समुद्र के किनारे ना जाएँ। दोपहर के वक्त जो है ये लहरें कम हो सकती हैं, लेकिन हाई टाइड के मद्देनज़र रखते हुए मौसम विभाग ने मुंबईकरों से इस बात की अपील की है कि वो इन इलाकों में जाने से परहेज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि ऊंची लहरें आपके लिए जानलेवा साबित हों। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि मुंबई, पालघर, नालासोपारा, रायगढ़, रत्नागिरी, इन सभी इलाकों में जो बारिश हुई है, इस बारिश की वजह से पूरा लोगों का जनजीवन, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है गड़बड़ हुआ है। लोकल ट्रेन से लेकर रास्तों तक जो है हर जगह पानी जमा हुआ था। अभी की अगर हम बात करें तो इन जगहों से पानी तो निकल गया है, लेकिन अभी भी भारी ट्रैफिक मुंबई में देखने को मिल रही है। लोकल ट्रेन जो मुंबई के लिए रोज़ सबसे अहम मानी जाती है, लाइफलाइन मानी जाती है, तेज़ बारिश की वजह से लोकल ट्रेन भी जो है देर से चल रही थी और कई जगह पे रुकते भी नजर आई।
उसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई के उन इलाकों के जिसमें से साइन, दादर, किंग सर्कल, सबअब इलाके की बात करें, मिलन सबवे और उसके साथ साथ अंधेरी, सांता क्रूज। मुंबई की बात करें तो मुंबई में मलबार हिल और परेल, इन सारे इलाकों में तेज जल जमाव की वजह से जो है ट्रैफिक थी और उसके साथ साथ जो है पानी जमा होने की वजह से एक तरह से मुंबई ठप सी गई थी। मौसम विभाग ने अभी भी इस बात की घोषणा की है कि आने वाले 24 घंटे में इसी तरह से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच बीएमसी के जरिए जो किए गए दावे हैं, हर साल की तरह ये दावे भी इस बारिश के पानी में जो है बह गए। बीएमसी ने इस बार, हालांकि बीएमसी को इस बार महज 13 दिन जो है एक्स्ट्रा मिले थे। इन 13 दिन में बीएमसी चाहती तो अपने बचे हुए कामों को पूरा कर सकती थी, लेकिन बीएमसी ने इस बार भी हमेशा की तरह मुंबईकरों को जो है बेवकूफ़ बनाने जैसा काम किया है। 13 दिन लेट होने के बावजूद भी बीएमसी के दावों की जो है पोल खुल गई है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि मुंबई में जो है पानी तो जमा होता है, लेकिन पानी जमा होना जो है कसूर नहीं है, पानी देर तक जमा होना ये कसूर है। यही वजह है कि अगर गटर लाइन और दूसरे जो बड़े बड़े ड्रेनेज लाइनें अगर साफ़ होती हैं तो पानी समय से निकल जाता है। लेकिन आज की पहली ही बारिश में बीएमसी की वो सारे दावे जो है पूरी तरह से खोखले साबित हुए। मुंबई और मुंबई से सटे नाला सुपारा, पालघर, रायगढ़, इन सभी इलाकों में जो है लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन भी किया। रायगढ़ में जो है लोग जो है ना, पालघर में भी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वसई में भी है ज़्यादा पानी भर गया था। निचले इलाकों में तो बहुत ज़्यादा पानी था। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के निचले इलाके पानी से लबालब हो गए थे। रात भर बारिश और फिर सुबह के बाद तकरीबन जो है धीरे धीरे जब पानी निकलना शुरू हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जो है पानी जमा होने की वजह से कई जगहों की ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि उन जगहों से वो जा ही नहीं सकते थे। सबवे की बात करें, मिलन सबवे या दूसरे जगह से बात करें हम, वहाँ पे पानी जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है 2 साल पहले, जहाँ पे एक कार चालक की जो है उसमें मौत हो गई थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जब भी इस जगह पे पानी जमा होता है तो यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट की जो है कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट जाती है। यही हाल इस बारिश में हुआ है। महज 24 घंटे की बारिश में इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी जमा हुआ, क्योंकि गटर और बड़े बड़े नाले जो है साफ़ सफाई पूरी तरह से नहीं किए गए थे। इसकी वजह से वो पानी जमा हो गया। जी शाहिद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि साल दर साल ये प्रॉब्लम आती है और इसका कोई रेजोल्यूशन ढूंढा नहीं जाता है। बट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Now, a cloud burst, viewers, has caused widespread